स्पेसिफिक है वो फॉर्मेट है। पहले हम स्टेजेस देख लेते हैं जजमेंट के, फिर जजमेंट पढ़ेंगे। इसमें आप देखेंगे ये सबसे पहले नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, ये पहली स्टेज है। सेकंड, नेम ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड डेजिग्नेशन देयर टू। देन सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, ईयर एंड CNR number and year. Then particulars of the plaintiff and defendants. Then the title of the suit for a specific performance of contract. Then presence of the advocates for plaintiff and defendant. Next, the judgment in center. Then date of the judgment. After then start the real judgment, para wise, the consecutively paras, the para number first, second, third, fourth. First para is concerned to the averments of the plaint, brief facts of the averment of the plaint. Second para is concerned to the averment of the WS. Third para is concerned to the issues, what issues have been framed by the court on the basis of the pleadings. Fourth para is concerned to the evidence of plaintiff, what evidence to be produced by the plaintiff before the court. Fifth is concerned to the evidence of defendant. Sixth is concerned to the final argument. Seventh is concerned to the decision of the court on each and every issue. The 7th point is concerned to the issue number first, decision on the issue number first. 8th is concerned to the next issue. 8th is concerned to the decision on issue number 2. Next one is decision on issue number 3rd. ये ज़रूरी नहीं है कि हर सूट में 3 या 4 इशू, मान लो किसी में 2 ही इशू है तो ये 8 और 9 में ही कंप्लीट हो जाएगा, अगला पॉइंट आएगा ही नहीं। उसके बाद कोर्ट का जो है वो अल्टीमेटली कोर्ट क्या कर रहा है, सूट एडमिट कर रहा है या सूट को डिसमिस कर रहा है, ये कंक्लूजन आएगा। इस सूट में चूंकि 4 इशू है वो इन्वॉल्व थे, तो देन 10th पॉइंट इज ऑल्सो कंसर्न टू द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन इशू नंबर 4. Next one, the conclusion of the court. What is ultimately done by the court, whether partly or fully admitted the suit of the plaintiff or partly or fully dismissed the suit of the plaintiff. And after then, the signature of the presiding officer and seal of the court. And then one line, the judgment is pronounced today in open court, and again signature of the presiding officer and seal of the court. All these are the stages of the judgment. Name of competent court, name of presiding officer and the designation thereto, then civil suit number and year including the CNR number, then the particulars of the plaintiff and defendant, then heading of the suit, then presence of the advocate for plaintiff or defendant, judgment, date of judgment, then para number first is concerned to the brief facts of the plaint, brief facts of the WS, then issue framed by the court, arguments, no, evidence lead by the plaintiff, then evidence lead by the defendant, then arguments, and after then decision on the issues involved in the that suit, and last para is concerned to the conclusion of the court, then signature of the presiding officer and seal of court, and the one line, this judgment has been pronounced, is pronounced in open court today, and then signature of the presiding officer and seal of the court. It is, all these are the stages of a right judgment. हिंदी में भी हम पहले स्टेजेज है वो देखेंगे। कोई भी सिविल निर्णय लिखना है तो उसमें क्या क्या स्टेजेज है वो आएगी। सक्षम न्यायालय का नाम आएगा सबसे पहले, उसके बाद पीठासीन अधिकारी का नाम और उसका पदनाम आएगा, फिर मूल सिविल वाद संख्या और वर्ष और ब्रैकेट में CNR नंबर आएंगे, उसके बाद वादी और प्रतिवादी की विशेषताएं आएगी बनाम बीच में लिखते हुए, फिर सूट किस नेचर का था
रिकवरी ऑफ मनी का है, पजेशन का सूट है, इंजेक्शन का है वो सूट है, या विनिर्देश अनुपालना का सूट है, जैसा भी सूट की नेचर है वो टाइटल जो सूट का वो है वो मेंशन होगा। इसमें चूंकि संविदा की विनिर्देश अनुपालना का, तो ये लिखा जाएगा संविदा की विनिर्देश अनुपालना का बाद। फिर अधिवक्ताओं की उपस्थिति मेंशन होगी इधर लेफ्ट साइड में, एम विद्वान अधिवक्ता वास्तववादी और एन विद्वान अधिवक्ता वास्तव प्रतिवादी। फिर निर्णय बीच में लिखा जाएगा, एक लाइन नीचे ये दिनांक है वो मेंशन होगी। फिर पैरावाइज जजमेंट शुरू होगा। ये सब जनरल चीजें थी, अब वो एक्चुअल जजमेंट यहां से स्टार्ट होगा। पैरा नंबर 1 जो जजमेंट का होगा उसमें वाद पत्र के संक्षिप्त कथन क्या थे, संक्षिप्त तथ्य क्या थे, ये है वो मेंशन होंगे। अगला जो पैरा आएगा पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 2 जो है वो लिखित कथन का WS जो पेश किया है उस WS के संक्षिप्त कथन क्या थे, यह है वो पैरा नंबर 2 में मेंशन होंगे। पैरा नंबर जो 3 होगा वो विवादक क्या बने, इश्यूज क्या फ्रेम किए गए। इसमें यदि एक ही क्वेश्चन में इश्यू फ्रेमिंग एंड जजमेंट राइटिंग दोनों पूछ लिया जाए तो ये आपको मेंशन नहीं करने हैं दोबारा। एज पर लॉ इश्यूज हैव बीन फ्रेम्ड एंड एक्सप्लेन टू द पार्टीज, केवल ये एक लाइन लिखनी है आपको। और यदि इश्यू फ्रेमिंग का क्वेश्चन अलग से नहीं पूछा गया है उस जजमेंट के अंदर तो देन आपको इश्यू भी मेंशन करने। ये आपको इस तरीके की सावधानी रखनी है, क्योंकि अदरवाइज है वो डबल हो जाएगी, इतनी जगह भी नहीं बचेगी। तो आप जो है ऐसा भी लिख सकते हैं कि उपरोक्त वर्णित जो है वो विवादकों की विरचना का जो टॉपिक है उसमें वर्णित विवादक जो है वो विरचित किए गए और पक्षकारों पर उसकी है वो व्याख्या की गई और पक्षकारों के द्वारा कोई अतिरिक्त विवादक नहीं है वो सुझाया गया। और इस पर जो है वो कोर्ट ने विचारण है वो प्रारंभ कर और साक्ष्य पेश करने के लिए वो पक्षकारों को अवसर दिया। तो ऐसा लिखकर हम आगे बढ़ सकते हैं। और यदि अलग से विवादकों की विरचना का प्रश्न उसी प्रश्न में नहीं पूछा गया तो आपको विवादक लिखने भी है इस पैरा में। नहीं, ये 3 लाइनें तो लिखनी पड़ेगी आपको, थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगी अभिवचनों के आधार पर और सारवान दस्तावेज की अंतर्वस्तु पर है वो। ये निम्नांकित विवादक विरचित की, ये निम्नांकित वर्ड नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा है वो विवादक विरचित किए गए और पक्षकारों पर उसकी है वो व्याख्या कर दी गई। या सम्यक रूप से लिख सकते हैं इसकी जगह ड्यूली, सम्यक रूप से विवादक विरचित किए गए और उन पर पक्षकारों की व्याख्या की गई। क्या कह रहे हैं आप? वो तो लिखने ही पड़ेंगे, वो तो मैंडेटरी है। इश्यूज में हम शॉर्टकट कर सकते हैं क्योंकि इशू हमने अलग पहले फॉर्मेट में बता दिए, तो फिर हमारा समय बचाने के लिए भी और उसी बात के रिपीटेशन से बचने के लिए हम इश्यूज वाले पोर्शन में ये लिख सकते हैं कि इशू हैव बीन ड्यूली फ्रेम्ड एंड एक्सप्लेन टू द पार्टीज। तो सम्यक रूप से हमने विवादक विरचित कर दी और पक्षकारों पर उनकी व्याख्या कर दी। ये 1 2 3 4 रूप में जो है दोबारा है वो इनको लिखने की है वो आवश्यकता नहीं। अभी सुनते रहे केवल आप, है ना, आपका बोलने का जब अवसर आया ना तब हम बोलने देंगे। जब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को समाप्त करने का बिल लाया गया था लोकसभा में, तब वो जो लद्दाख के एक सांसद थे वो बोले थे कि आज मेरा बोलने का दिन है, अभी आप सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए। तो अभी मेरा बोलने का टाइम है, जब आपका बोलने का समय आएगा पूरा मेरे द्वारा एक्सप्लेन करने के बाद तब आपको भी है वो बोलने दिया जाएगा। यस, जो 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट के अंदर जो है चूंकि यहाँ ट्रायल है वो स्टार्ट है वो हो गई, तो इसमें वादी ने क्या क्या साक्ष्य पेश किया, मौखिक और दस्तावेजी, ऑरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वादी के द्वारा क्या पेश की गई है, ये 4th नंबर जो पैरा आएगा जजमेंट में उसमें मेंशन करना है आपको। 5th जो है प्रतिवादी की एविडेंस। मान लो किसी में एक्स पार्टी हियरिंग हुई, प्रतिवादी ने साक्ष्य पेश ही नहीं किया, उसने जवाब दावा ही पेश नहीं किया या जवाब दावा पेश करने के बाद अब्सेंट रहा, एक्स पार्टी हियरिंग का है वो ऑर्डर हो गया, तो उस कंडीशन में ये पैरा भी है वो लैप्स हो जाएगा। इसमें आ जाएगा कि चूंकि प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय है वो सुनवाई है वो की गई, इसलिए किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया इस पत्रावली में, उस 2 लाइन से काम चल जाएगा। और जहां डिफेंडेंट ने फुल पार्टिसिपेट किया तो फिर प्रतिवादी ने क्या साक्ष्य पेश किया इसका भी हवाला आएगा इस पैरा नंबर 5 में। थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन होता रहेगा प्रोसीडिंग में, किस तरीके से पार्टिसिपेशन रहा उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें प्रतिवादी का जो साक्ष्य होगा उस साक्ष्य का हवाला कौन कौन से ऑरल विटनेसेस जब वो पेश किए
और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो पेश की, वो मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का हवाला इस 5th नंबर पैरा में आ जाएगा। 6th जो है आर्ग्यूमेंट है वो पार्टीज के है वो सुने। उसके बाद जो है कोर्ट हर विवादक पर अपना डिसीजन है वो देगा, ऐसा आपने कहां पढ़ रखा है, ऐसा आपने ऑर्डर 14 के रूल 2 में भी पढ़ रखा है और ऑर्डर 20 के जो है वो रूल 5 में भी पढ़ रखा है। आदेश 14 के नियम 2 में भी पढ़ रखा है कि हर इश्यू पे कोर्ट का सेपरेट डिसीजन होगा, और ऐसा आपने ऑर्डर 20 के रूल 5 में भी पढ़ रखा है इसी है वो बात को। तो वो कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग है वो प्रभाव रखती है। 4 विवादक मोटा मोटी इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। सभी विवादक पर कोर्ट का अलग अलग डिसीजन आएगा एविडेंस को अप्रिशिएट करते हुए। उस इश्यू के संदर्भ में प्लेंटिफ ने क्या एविडेंस पेश की थी, डिफेंडेंट ने क्या पेश की थी, और कोर्ट किसको कंसीडर कर रहा है। दोनों की एविडेंस को देखने के बाद कोर्ट को किसकी एविडेंस में वेट लग रहा है, कौन सी एविडेंस है वो सही है वो लग रही है, उसके बेसिस पे कोर्ट का है वो डिसीजन आएगा इस पे। तो ये 7th, 8th, 9th और 10th ये जो 4 पैरा, इसमें 4 इश्यूज इन्वॉल्व है, तो 4 जो है वो पैराज कंटिन्यू हर विवादक के बारे में कोर्ट का डिसीजन होगा। और अल्टीमेटली कोर्ट इसमें है वो क्या लिखता है कि ये विवादक जो है, ये विवादक संख्या 1 था, ये किसके पक्ष में कोर्ट तय कर रहा है, ये लाइन भी आएगी वादी के पक्ष में, और प्रतिवादी के विरुद्ध है वो तय किया जाता है या निर्णित किया जाता है, ये स्पेसिफिक लाइन भी कोर्ट को है वो देनी होगी। और क्यों कर रहा है तय, वो रीजन भी देने होंगे, वो रीजन पहले आ गए, रीजन पहले मेंशन हो गए, और अल्टीमेटली ये कंक्लूजन भी आएगा कि इश्यू नंबर 1 इज डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द प्लेंटिफ एंड अगेंस्ट डिफेंडेंट। ये स्पेसिफिक लाइन भी कोर्ट के द्वारा है वो मेंशन की जाएगी। ये आगे सारा रिपीटेशन है। इसमें इश्यू नंबर 2 के बारे में कोर्ट की फाइंडिंग है। अगला जो है इसमें इश्यू नंबर 3 के बारे में, और जो 10th पैरा है इसका इश्यू नंबर 4 के बारे में वो डिसीजन है। और लास्ट जो पैरा है इसमें कोर्ट अपना कंक्लूजन देगा इन इश्यूज में जो कोर्ट की फाइंडिंग है उनके बेसिस पे, कि क्या कोर्ट अल्टीमेटली प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एंटाइटल मानता है या नहीं, और उसके कॉन्सिक्वेंस में सूट डिसमिस होना चाहिए या सूट एडमिट होकर डिक्री होना चाहिए वादी के पक्ष में, और डिक्री तैयार की जाए। चूंकि इसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट भी कैसा, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट था, तो इस कंडीशन में सेल डीड एग्जीक्यूट करने का डायरेक्शन भी होगा। परचेज मनी या जो प्राइस जो है या अमाउंट ऑफ कंसीडरेशन वो पे किया जाए, इसका भी है वो डायरेक्शन होगा। कॉस्ट कौन कौन सी पार्टी जो है अपनी अपनी कॉस्ट है वो बियर करेगी या वहन करेगी, या फर्स्ट पार्टी जो को सेकंड पार्टी है वो कॉस्ट देगी, या एक्सेप्शनली फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को है वो कॉस्ट देगी, इसके बारे में भी कोई कोर्ट का है वो कंक्लूजन हो सकता है। और लास्टली जो है डिक्री है वो प्रिपेयर की जाए या डिक्री है वो पर्चा तैयार किया जाए, ये डायरेक्शन भी होगा। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और कोर्ट की मुद्रा आएगी। और एक लाइन में ये जिस तरीके का ऑर्डर में भी हमने पढ़ा था वैसा जजमेंट में भी आएगा। यह निर्णय आज दिनांक, माह और वर्ष को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया, और दोबारा जो है पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा है वो आएगी। तो मोटा मोटी हम देखें, मैं हिंदी में नोट करूंगा, आप लोगों की उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करके भी इंग्लिश वालों को है वो लिखनी है, बोल दूंगा बट लिखना आपको खुद को है ना। जैसे हम मोटा मोटी इस फॉर्मेट में देखें तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि सक्षम न्यायालय का नाम, नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट। दूसरी बात हमने पढ़ ली पीठासीन अधिकारी का नाम और पद नाम, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर। थर्ड हमने पढ़ा सिविल वाद संख्या, सिविल वाद संख्या, वर्ष और CNR। हाँ, CNR, कंप्यूटर को कंप्यूटर ही लिखेंगे और रेल को रेल ही लिखेंगे हम, है ना। यस, नेक्स्ट वादी और प्रतिवादी की विशिष्टता, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट।
के विवरण। फिफ्थ, वाद का शीर्षक, टाइटल ऑफ द सूट। सिक्स्थ, प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट्स, अधिवक्ताओं की उपस्थिति। सेवंथ, निर्णय शब्द, द वर्ड या द एक्सप्रेशन जजमेंट। एट्थ, डेट, डेट ऑफ जजमेंट। ये 8 पॉइंट जनरल है, यहां कोई नंबरिंग नहीं है, ये विदाउट नंबर है वो मेंशन होंगे। अपन ने इनको नंबर दिए हैं एक दिमाग में फ्रेमिंग बनाने के लिए कि इस ऑर्डर से हमें लिखना है, इस क्रम से लिखना है। ये सारे जो है वो विदाउट नंबर है वो मेंशन होते हैं। जजमेंट में इनके बाद नंबरिंग स्टार्ट होगी। इतनी चीजें तो विदाउट नंबर, उनको कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड एटसेट्रा कुछ भी मेंशन है वो नहीं किया जाएगा, सिंपल लिखा जाएगा उनको। इसके बाद जो एक्चुअल जजमेंट स्टार्ट होता है उसमें जो फर्स्ट पैरा आएगा, इसको मैं 9 नंबर दे रहा हूं, क्योंकि इस तरीके की फ्रेमिंग जब आपके दिमाग में बनेगी तब आपके लिए जजमेंट लिखना इजी हो जाएगा। 9th पॉइंट में ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्लांट, वाद पत्र के संक्षिप्त कथन। अगला जो पैरा होगा, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द WS, लिखित कथन के संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त कथन या संक्षिप्त तथ्य। इलेवन, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, विवादकों की विरचना। ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द प्लांट, वाद पत्र के संक्षिप्त कथन। वादी का जो वाद पत्र है उसमें उसने ब्रीफली या कंसाइसली क्या है वो कहा है, वो लिखा जाएगा 9th में। 10th में ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। 11th में इश्यू फ्रेमिंग ऑफ द इश्यूज, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। देन एविडेंस ऑफ प्लेंटिफ। Next, evidence of defendant. Fourteenth, final argument. अंतिम बहस। 15, decision of the court on each issue। प्रत्येक विवादक पर प्रत्येक विवादक पर न्यायालय का निर्णय। एक बार आप इसको लिख लो पहले, फिर दिखवा देंगे, है ना। डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑन ईच इश्यू, और इसमें जो है वो मोर देन 1 पैराज है वो कवर हो सकते हैं। केवल एक ही इश्यू इन्वॉल्व है तो केवल 15 पॉइंट में कंप्लीट हो जाएगा। 2 इश्यू इन्वॉल्व है तो 15 एंड 16 हो जाएंगे। 3 इश्यू इन्वॉल्व है तो 15, 16, 17 हो जाएंगे। तो ये इसमें मोर देन 1 पैराज है वो कवर हो सकते हैं। देन कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय का निष्कर्ष में क्या आएगा? टू एडमिट द सूट और डिसमिस द सूट। कोर्ट अल्टीमेटली दावे को स्वीकार कर रहा है या खारिज कर रहा है, दावा या वाद।
वाद को स्वीकार या अस्वीकार, स्वीकार या खारिज। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ कोर्ट। Then statement as to the judgment has been pronounced in open court, खुले न्यायालय में निर्णय सुनाए जाने का कथन। और लास्ट जो पॉइंट है, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा, सिग्नेचर ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड सील ऑफ कोर्ट। ये 19 स्टेज है, इसमें 19 पॉइंट इन्वॉल्व है जजमेंट राइटिंग के अंदर। निर्णय जब भी आपको लिखना हो सिविल जजमेंट, तो ये 19 बातें आपको दिमाग में रखनी है। ये जो है वो कवर होगी। हाँ, इसमें से 19 की जगह 18 हो सकती है, वो हालांकि 18 नहीं होगी, उसमें भी आपको हवाला देना होगा कि एक्स पार्टी हियरिंग है वो है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, इस बात को है वो लिखना होगा, उसका भी है वो पॉइंट तो बनेगा। हाँ, ये वाला जो है 15 नंबर पॉइंट, इसमें केवल एक पैरा हो सकता है, एक से अधिक पैरा भी है वो हो सकते हैं। बाकी ये सभी चीज़ें आपको जो है वो सभी स्टेजेस जो है वो आपके जजमेंट में मेंशन करने होंगे। सबसे पहले कॉम्पिटेंट कोर्ट का नेम, सेकंड नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ प्रिजाइडिंग ऑफिसर, थर्ड सिविल सूट नंबर, ईयर, CNR नंबर, फोर्थ the description of the plaintiff and defendant or detail of the particular of the plaintiff and defendant, fifth title of the suit, sixth presence of the advocates, seventh the word judgment, eighth date of the judgment, ninth brief facts of the plaint, 10th brief facts of the written statement, 11 statement as to the framing of issues, 12 statement as to the plaintiff's evidence, 13 statement as to the defendant's evidence, 14 final arguments, 15 decision of the court on each issue, 16 conclusion of the court, 17 signature and of the presiding officer and seal of court, 18 statement as to the judgment has been pronounced in open court, and 19 signature of presiding officer and seal of the court। ये 19 बातें आपको दिमाग में रखनी होगी, तब आपका जाके जजमेंट है वो कंप्लीट होगा। तो ये तो केवल अभी कीवर्ड्स हुए इसके लिए। ये तो 19 जो है वो क्या है, 19 है, ये कीवर्ड्स है जजमेंट्स के लिए। इन सभी स्टेजेस को आपको है वो जजमेंट के अंदर 1 by 1 है वो मेंशन करनी होगी। हाँ जी, इसी ये सेंटर में आएगा, ये थोड़ा इधर से स्टार्ट होगा, ये जो है बराबरी से भी हो सकता है, थोड़ा सा इधर से स्टार्ट होगा। ये नेम जिस तरीके से दे रखे हैं इस फॉर्मेट में इसी तरीके से आएंगे। ये टाइटल सेंटर में है वो आएगा, ये प्रेजेंस थोड़ी सी इधर लेफ्ट साइड में मेंशन होगी। जिस तरीके से ये पेज पे दिख रही है ना, एक्चुअल में भी जजमेंट में इसी जगह है वो आनी चाहिए। हाँ जी सर, जैसे हम इश्यूज को डिसाइड करेंगे तो उसमें ऊपर हेडिंग डालनी है कि डिसीजन ऑन इशू। नहीं, वो जैसा मैं अभी बताऊंगा उस पैरा में, जिस तरीके से मैंने रनिंग में लिख रखा वैसे ही आपको नोट करना है।
सिविल जजमेंट ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा। ये मैंने तो आइडेंटिफाई करने के लिए कि देखते ही पहले पेज पे पता चल जाए कि ये क्रिमिनल जजमेंट है या सिविल जजमेंट है, इसके लिए मेंशन कर रखा है। तो ये लिखना जरूरी नहीं है, यहां से स्टार्ट करना है आपको। क्या कह रहे हैं? हाँ, एडवोकेट की प्रेजेंस लगाने के बाद जो है वो बिल्कुल पूरे पेज के सेंटर के अंदर जो है, मध्य के अंदर है वो निर्णय थोड़ा सा बड़ा लिखना है अक्षर आपको। सामान्यतः जिस फॉन्ट का आप यूज कर रहे हैं उससे थोड़ा बड़ा कर है वो आपको है वो निर्णय लिखते समय थोड़ी साइज अक्षरों की बड़ी होनी चाहिए, और उसको अंडरलाइन भी करना है। और उसकी अगली जो लाइन है उसके लास्ट में आके राइट साइड में डेट है वो मेंशन, इसकी बराबरी में नहीं आएगी डेट, एक लाइन नीचे की तरफ जो है वो डेट है वो मेंशन होगी। और डेट खाली नहीं छोड़नी है, डेट मेंशन भी करनी है आपको। डेट जो है केवल ब्लैंक है वो नहीं छोड़नी है, कुछ भी नहीं है तो आप जिस दिन आपका एग्जाम लिख रहे हो उस दिन जो भी डेट है आपका सिविल का एग्जाम लिख रहे हैं वो डेट है वो मेंशन कर सकते हैं आप। सर ये डेट के बाद वो लाइन लिखते जो ऑर्डर में लिख रहे थे हम, आई एक्स जज नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसमें जजमेंट का थोड़ा सा अलग फॉर्मेट है ऑर्डर से। हाँ जी, नहीं ये क्या कह रहे हैं? सर स्पेसिंग कितना रहता है? 1.5 पेज या 2 पेजेस कितना स्पेसिंग रहता है? जजमेंट वाले पेपर में जिन्होंने मेंस लिखा है अभी रिसेंटली बता सकते हैं 4 पेज के आसपास रहेगा। हाँ, 3 से 4 पेज, मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 4 पेज है वो रहेंगे आपके पास। एक पेज में तो आपके इशू फ्रेमिंग कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ जजमेंट पूछा है तो 3 पेज में आपको जजमेंट लिखना है। और वो जो स्पेस होगा वो जनरली जैसे मेरी जो हैंडराइटिंग है इससे उससे डबल है वो स्पेस रहेगा, जितने में मैं लिख सकता हूँ ना उससे डबल स्पेस रहता है, 2 पेज में कंप्लीट हो सकता है। तो उसके लिए अब वो 2 पेज एक्स्ट्रा रखा जाता है, तो कोई बड़े अक्षर भी लिखता है तो उसका छूटे नहीं। हाँ जी, हाँ बड़ी सीट होती है, पूरी लंबी होती है वो सीट, लगभग 20 शब्द आ जाते हैं उसमें एक लाइन के अंदर। बड़ी नहीं आती जैसे मेरे, अच्छा ओके, हाँ वो मैंने दिया था उस समय तो बड़ी आती थी। हाँ उसमें जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती थी उसकी। हाँ अब तो शायद ये जो आपका रजिस्टर या कॉपी जो है इस साइज में आ गई है। नहीं वो तो ठीक है, ये छोटी है साइज अपने वाली, टेस्ट की साइज तो A4 साइज है। हाँ हाँ जी, नहीं लिखना पड़ेगा, वो तो डॉट डॉट से तो नहीं चल पाएगा। ये हो सकता है कि 7-8 लाइन में दे रखा है उसको 3-4 लाइन में आप कंक्लूड कर लें, कुछ कॉमा लगा के उनको कनेक्ट करके, वो 8 लाइन वाली बात आप 4 लाइन में लिख सकते हैं। लिखना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। नहीं वो जजमेंट का पार्ट है एक्चुअली। ये ऑर्डर 20 रूल 4 आप पढ़ेंगे, सिविल जजमेंट जो है, सिविल कोर्ट्स के जो जजमेंट है, ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस जो है या मामले के संक्षिप्त जो तथ्य या कथन है, ये जजमेंट में मेंशन होना मैंडेटरी है। तो केवल हम ये नहीं कह सकते कि साहब वही फैक्ट है जो प्रॉब्लम में दे रखे हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। जो पेपर में दे रखे हैं या क्वेश्चन में दे रखे हैं वही है, वो अवेयरमेंट्स है, वही फैक्ट है, ऐसा नहीं लिख सकते। आपको नोट करना पड़ेगा संक्षिप्त में। नहीं ऐसा भी ना करें, आधी अधूरी बात भी नहीं, उसको थोड़ा कंसाइज कर सकते हो आप। वो जो 2 लाइन वाली बात को आप यदि उसको और कंक्लूड करके और 4 शब्दों में बता सकते हो तो ऐसा कुछ कर सकते हो। वो संक्षिप्तीकरण यदि आपको करना अच्छे से आता है, समराइज करना, तो कर सकते हो। बट समराइज का मतलब ये नहीं हुआ कि कोई इंपॉर्टेंट बात पीछे रह जाए।
हाँ जी, चार चार जने बोलोगे तो किसी की आवाज नहीं आएगी भाई, केवल एक कैंडिडेट बोले एट ए टाइम। सर जहाँ पे ए सन ऑफ ए प्लेंटिफ का नीचे राइट साइड पे प्लेंटिफ है ना, प्लेंटिफ डिफेंडेंट राइट साइड पे जैसे आप फॉर्मेट में। हाँ, ये तो लिखना होगा आपको और डॉट 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 करके ही छोड़ना होगा। मतलब आप वो एग्जामिनेशन अथॉरिटी को ये बता रहे हो कि इसमें लिखने में जो उसका नाम भी आता है, फादर्स नेम भी आता है, एज भी आती है, रेजिडेंट भी आती है। चूंकि पेपर में नहीं है इसलिए हम इसको खाली छोड़ रहे हैं। यदि होती उस एबो क्वेश्चन में तो हम मेंशन भी कर देते। वादी प्रतिवादी लिखना है क्या ब्रैकेट में? लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो तो भी अंडरस्टूड है कि पहले नाम वादी का आएगा और फिर वर्सेस करके प्रतिवादी का आएगा, ये तो डीम्ड है। नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि प्रतिवादी वर्सेस वादी, पहले प्रतिवादी का नाम और बनाम वादी, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा केवल काउंटर क्लेम में होगा। कहाँ होगा? और बट वो भी जजमेंट में ऐसा मेंशन नहीं किया जाएगा। जजमेंट में तो टाइटल वही रहेगा, वादी वर्सेस वो प्रतिवादी ही। या मान लो वादी ने अपना दावा ही वापस ले लिया और उस कंडीशन में यदि इंटर पोजीशन हुआ है, ट्रांसपोजिशन सर, ट्रांसपोजिशन हुआ है, तो उस कंडीशन में जो है वो प्रतिवादी का नाम वादी की जगह आ सकता है। बट वो उस कंडीशन में प्रतिवादी वादी बन जाएगा। अब उसकी कैपेसिटी है वो प्रतिवादी की नहीं रही, वो प्लेंटिफ बन गया जो ही उस स्टेज पे आते ही। हाँ जी उमा, उमा उमा सुस्मिता, एक बार माइक ऑफ कर दे अपना। बाकी अपन पढ़ेंगे ना अभी जजमेंट, तो और चीजें जो आपके दिमाग में आ रही है ना उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार अपन जजमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ जाएगा जजमेंट का कि कितना मैटर आएगा, है ना? क्वेश्चन इसकी प्रॉब्लम हमने पढ़ ली, किसमें? इश्यू फ्रेमिंग में। इसी की ही प्रॉब्लम हमने वो पढ़ रखी है। अभी जब पढ़ेंगे ना ब्रीफ फैक्ट्स, तब आपको रिकॉल हो जाएगा कि ये कौन सा है वो जजमेंट। इसको ही पहले देख लेते हैं अपन, फिर फॉर्मेट पे आते हैं। पैरा नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है इसको पहले देख लेते हैं। द ब्रीफ फैक्ट्स averred by the plaintiff are an agreement dated 30th April 2002 executed between the plaintiff A and defendant B concerning the sale of the plot situated at Civil Lines, Bikaner, which was already in possession of the plaintiff as tenant. Plaintiff stated that he has performed his part of the agreement and has paid the entire consideration of the rupees 10 lakh by December 2007. However, the sale deed was not executed and registered, and despite repeated requests, the same was being avoided. Defendant gave a notice dated 1st February 2011 alleging the default in payment of the rent. When plaintiff personally met with the defendant on 15 March 2011, he refused to execute the sale deed. It was prayed that the defendant be directed to execute the sale deed and get the same registered. The suit of the plaintiff after inquiry was registered in the register of the civil suits. And what are the facts of the WS? The summons were served on the defendant to appear and file his written statement in reply to the plaintiff, and the said summons were produced in court after due service. The defendant filed the written statement inter alia submitting that the plaintiff has not performed his part of the contract even as per the averments in the plaint. The consideration was paid in the December 2007. Therefore, the suit is barred by limitation. And the agreement being unregistered is inadmissible in evidence. And it was also claimed that the daughter of the defendant was to get married, and as he was in dire need of the funds, the agreement was entered into for a paltry sum. It was prayed that the suit be dismissed. ये प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी, इस पर इशू हमने बनाए थे। इशू के टाइम में वो डिस्कस किया था कि एक प्लॉट जो है वो बीकानेर में है और उसको सेल करने का एग्रीमेंट जो है वो डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के साथ किया,
और उसका पूरा जो कंसिडरेशन का अमाउंट था 10 लाख रुपीज़, वो दिसंबर 2007 में प्लेंटिफ ने वो पे कर दिया डिफेंडेंट को। कई बार रिक्वेस्ट की गई उससे जो है डिफेंडेंट से सेल डीड एग्जीक्यूट करने के लिए, बट हमेशा उसने वो अवॉइड किया। हालांकि जिस प्लॉट को उसने ख़रीदा था उस प्लॉट के अंदर एग्रीमेंट के टाइम जो है कंसर्न प्लेंटिफ टेनेंट के रूप में जो है वो रह रहा था। तो डिफेंडेंट ने एक नोटिस दिया 2011 में एक पर्टिकुलर डेट पे, 1 फरवरी या जो कुछ भी है वो डेट अभी डिस्कस की थी हमने, 1 फरवरी 2011 को, और उस नोटिस में कहा कि आपने पेमेंट है वो रेंट का टाइम पे नहीं दिया है, इसलिए आप विद इन सो एंड सो टाइम में वो पे करें, अदरवाइज आपके अगेंस्ट जो है इविक्शन का सूट लाया जाएगा। इस तरीके का एक नोटिस दिया। जब पर्सनली प्लेंटिफ डिफेंडेंट से मिला कि भले आदमी मैंने आपका इस प्लॉट का पूरा पेमेंट दे दिया है, खरीद लिया है, इसका एग्रीमेंट 2002 में आपके साथ है वो कर रखा है 34 अप्रैल 2002 को, और आप मुझे नोटिस दे रहे हो कि साहब आप टेनेंट और आपने रेंट है वो पे है वो नहीं किया टाइम पे, इसलिए आपके खिलाफ वो इविक्शन का सूट है वो लेके आएगा, ये मेरी सेल डीड एग्जीक्यूट करवा दो जो पेमेंट दे रखा है जिस प्लॉट का। तो उसने अंगूठा दिखा दिया, साफ मना कर दिया कि कोई प्लॉट नहीं है, ना मेरे साथ कोई आपका है वो अंगूठा कोई एग्रीमेंट है वो हो रखा था, जो आपको करना है वो कर देना। तो वादी जो है इस व्यवस्था में आके एक सूट इंस्टीट्यूट करता है कि साहब इसके साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, मैंने अपने पार्ट परफॉर्म किया है, कंसिडरेशन का अमाउंट भी पे कर दिया, और मैं रेडी भी हूँ, आगे भी कहीं मेरी प्रेजेंस जरूरी है रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार आदि के समक्ष अपने फोटोग्राफ्स देने के लिए, पर्सनली अपेयर होने के लिए, और ये डिफेंडेंट जो है ये इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोर्ट मेरी प्रेयर को सुने और इसको डायरेक्शन दे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कि मेरे फेवर में सेल डीड है वो एग्जीक्यूट करे वो, और उसका रजिस्ट्रेशन भी करवाए। तो इस तरीके का, और डिफेंडेंट कह रहा है कि सब इसका सूट लिमिटेशन से बाहर है। 2007 दिसंबर में इसने कंसिडरेशन का अमाउंट पे कर दिया था, दिसंबर 2010 तक सूट ला सकता था, 3 इयर्स की लिमिटेशन है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। 2011 में ये सूट है वो लेके आया है, तो इसलिए जो है इसका बार्ड बाई लिमिटेशन है। दूसरी बात, एग्रीमेंट तो मैंने किया था, मेरी लड़की की शादी थी और उसमें तुरंत पैसों की है वो आवश्यकता थी, इसलिए कम पैसे पे ये प्लॉट मैंने दे दिया इसको। कम पैसों पे जो है वो बहुत कम कीमत पर है वो मेरा सौदा या ये जो है वो करार है वो हो गया है, इसलिए मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, स्वतंत्र है वो सहमति नहीं थी इस करार में, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा है या कॉर्जन कंपल्सन आदि में जो है वो मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को है वो एग्जीक्यूट किया है। और इसके अलावा जो है प्लेंटिफ ने अपने पार्ट को भी परफॉर्म नहीं किया है, उसने जो है अपने भाग की है वो पालना है वो नहीं की है इस है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो हम इस प्रॉब्लम को देखें, देन एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन एडमिटेड बाय द डिफेंडेंट। उसके एवरमेंट से हम देखें तो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन तो उसने एडमिट कर दिया लास्ट में जाके, बेटी की शादी थी, पैसों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए कम कीमत पर यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो हो गया, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन तो एडमिटेड है, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है। और ये भी कह रहा है कि साहब ये दिसंबर 2007 में जब इसने पेमेंट दे दिया तो दिसंबर 2010 तक सूट लाना था, तो अमाउंट ऑफ जो कंसीडरेशन है उसको भी इनडायरेक्टली एडमिट कर रहा है वो, मैंने प्रतिफल की राशि भी 10 लाख रुपए है वो ली है। और बाकी बातें जो है हम आगे है वो देखेंगे इसको, तो इसको इस पे आपको है वो जजमेंट लिखना है। जजमेंट के फॉर्मेट में आप देखेंगे जिस तरीके से हमने कुछ बिंदु अभी डिस्कस किए थे कि जजमेंट राइटिंग में ये सभी चीज़ें आएगी। सबसे पहले नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट, चूंकि ये बीकानेर की घटना बताई, 10 लाख रुपए की वैल्यू का वो प्लॉट बताया, तो इसमें जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। किस कोर्ट का? पिकनियर जुडिक्शन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, इसलिए जो है नेम ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट में इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बीकानेर आएगा। देन प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक्ट्स एंड डेजिग्नेशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर, डिस्ट्रिक्ट जज कैडर जो है वो डेजिग्नेशन है वो मेंशन होगा। देन सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, सूट चूंकि 2011 में इंस्टीट्यूट किया गया था तो आपको ईयर भी 2011 है वो बताना है इसमें। ये सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, हाँ, तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग तो इंफीरियर कोर्ट में जाना चाहिए, तो अपन तब भी पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन देखेंगे। इन्फीरियर का आपने सेक्शन 15 का इंटरप्रिटेशन पढ़ा है कि वहाँ कॉम्पिटेंसी जो वर्ड यूज लिया गया वो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू द पिक्यूनियरी जुरिसडिक्शन।
किससे रिलेटेड है? पिक्यूनरी जुडिक्शन। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आता है इस बिंदु पे। तो सर अगर ट्राई टू कॉम्पिटेंट द दैट सूट, वहाँ कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है? पिक्यूनरी जुडिक्शन से ही कंसर्न है 15। ठीक है, तो सर पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन अगर दिया मतलब अमाउंट दी हुई है तो हम उस हिसाब से चलेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। बिल्कुल। यस, सिविल ओरिजिनल सूट नंबर और ईयर जो है, नंबर के बाद डॉट 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 करना है आपको, और उसके बाद जो है वो ऑब्लिक करके ईयर मेंशन करना है। देन ब्रैकेट में CNR एंड डॉट 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 ऑब्लिक 2011। प्लेंटिफ और डिपेंडेंट के नेम मेंशन नहीं थे प्रॉब्लम में, तो आपको सिंबॉलिक कोई नाम है वो देना होगा प्लेंटिफ और डिपेंडेंट को। इसमें हमने ए एंड बी दिया है, ए प्लेंटिफ के लिए और बी डिपेंडेंट के लिए। सन ऑफ एज रेजिडेंट ऑफ वर्सेस, देन बी सन ऑफ एज एंड रेजिडेंट ऑफ। देन ये टाइटल सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेंशन होगा जजमेंट के अंदर भी। जो सूट का टाइटल है वो जजमेंट में भी है, वो मेंशन होगा किस पर्पस का सूट था। और उसके बाद नेम ऑफ एडवोकेट प्रेजेंट, एम लर्नर्ड काउंसिल फॉर प्लेंटिफ एंड एन लर्नर्ड काउंसिल फॉर डिफेंडेंट। दोनों के जो है सिंबॉलिक नेम हमने एम और एन दिया। एम जो है प्लेंटिफ के लिए एडवोकेट है और एन जो है वो डिफेंडेंट के लिए एडवोकेट है। देन जजमेंट अंडरलाइन होगा, सेंटर में लिखा जाएगा, और उसके बाद डेट मंथ और ईयर। पैरा नंबर फर्स्ट और सेकंड ये ऑलरेडी हमने पढ़ लिए। थर्ड पैरा से हम स्टार्ट करेंगे इसको। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग द पार्टीज, प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज, द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग इश्यूज वर फ्रेम एंड ट्रायल वॉज कमेंस। यदि इश्यू फ्रेमिंग का भी क्वेश्चन था इसके साथ, तो देन थोड़ी सी लैंग्वेज हम इसकी चेंज कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लीडिंग ऑफ पार्टीज एंड द डॉक्यूमेंट प्रेजेंट द फॉलोइंग की जगह हम क्या कर लेंगे, अबो मेंशन लिख सकते हैं। हाँ, अबो मेंशन लिख सकते हैं, या ड्यूली इश्यूज वर फ्रेम्ड, ड्यूली इश्यूज वर और हैज बीन फ्रेम्ड एंड ट्रायल वॉज कमेंस। यदि इशू फ्रेमिंग का अलग से क्वेश्चन नहीं था, केवल जजमेंट राइटिंग का क्वेश्चन है, तो देन आपको इसी लैंग्वेज को यूज करना पड़ेगा। फॉलोइंग इश्यूज वर फ्रेम्ड, हैज बीन फ्रेम्ड एंड ट्रायल हैज बीन कमेंस, वॉज कमेंस। ये इश्यूज हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। Whether the disputed agreement mentioned in the para number first of the plaint was lawfully executed between the plaintiff and defendant, and can the said agreement be specifically enforced, and burden of proof lies on the plaintiff. Second issue, whether the plaintiff had performed and ready and willing to perform his part in the agreement, and burden of proof lies on the plaintiff. Third, whether the suit is liable to be dismissed due to the barred by the limitation, burden of proof lies on defendant. And whether disputed unregistered agreement is inadmissible in evidence and plaintiff suit is liable to be dismissed. This fourth issue, burden of proof lies on defendant, and last one is the relief, if any, to be granted. Issues have been explained to the parties. Then next para. On the application of the plaintiff, the summons were issued to the witnesses of the plaintiff. Plaintiff A submitted his affidavit in evidence and examined himself as PW first. Original contract was marked as exhibit first in evidence. Plaintiff firmly reiterated the fact of the plaint that on 13th April 2002 a contract was executed between the plaintiff and defendant. Parties were competent to contract, was executed by free consent of the parties for lawful object and lawful consideration, not expressly declared void by the Contract Act. In suit for specific performance of contract, the registration of document is not necessary. Defendant refuses to register the sale deed on 15th March 2011. Cause of action arose on that same day, and hence the present suit is not barred by the limitation. The plaintiff has paid the entire consideration of the 10 lakh rupees under the contract. Compensation in money is not adequate relief in contract for sale of immovable property. The plaintiff is entitled to a specific performance of the said disputed contract. Plaintiff produced the PW2P and PW3Q in his evidence and stated
that he is one of the attested witness of the said disputed document, plaintiff A and defendant B sign on the said agreement in his presence and was executed before him. PW third Q also produced the affidavit in his evidence and stated that he is one of the attested witness of the said disputed agreement. Exhibit first, plaintiff A and defendant B sign on the said agreement in the presence of him and P that it was executed before him. Plaintiff did not produce any other evidence and no witnesses were further called. Evidence of the plaintiff was closed. Then defendant B examined himself as DW first. When any witness produced on the plaintiff side, the marking as the PW first, PW second, PW third. Any witness is produced on the defendant side, the DW first, DW second and DW third. If any document is produced from the plaintiff side, then what marking to be made upon the concerned document? Exhibit first, exhibit second, exhibit third, exhibit fourth, and any document is produced on behalf of the defendant, what to be marked upon the concerned document? Exhibit A1, exhibit A1, exhibit A2, exhibit A3. The defendant B examined himself as DW first, and all these things mentioned in the Civil General Rules. Civil General Rules 2018 was made by the Honorable Rajasthan High Court. DW first and produced the affidavit in his evidence. Defendant B reiterated the averments made by him in his written statement that the plaintiff did not perform his part in disputed agreement. Plaintiff suit is barred by limitation. Disputed agreement is unregistered and inadmissible in evidence, and said contract was entered into for a paltry sum. All these averments repeated by the defendant in his evidence. During cross examination, defendant B admitted that the disputed agreement exhibit first was executed between the plaintiff A and defendant B. Defendant also admitted that he received the 10 lakh rupees as consideration and said that it was a paltry sum. Defendant also admitted that he signed on the disputed agreement exhibit first in the presence of the PW2 P and PW third Q. Defendant did not desire to produce any other witness or evidence. The defense evidence of the defendant B has been closed. Then the final arguments. Final argument were heard from both the sides, and the learned advocate of the plaintiff and defendant repeated the averments of the plaintiff in written statement, and plaintiff counsel prayed to admit the claim and pass the decree in favor of the plaintiff, and defendant counsel prayed to dismiss the suit of the plaintiff. In nutshell, next para related to the decision on the issue number first, issue involved in that suit. Burden of proof of proving the issue number first lies on plaintiff. In support of the said issue, the plaintiff himself examined as PW first, also examined the PW second P and PW third Q. Plaintiff also gave a affidavit of his evidence and affidavit of the PW2 P and affidavit of the PW third Q. Original contract marked as the exhibit first, and plaintiff firmly stated in his evidence that the disputed contract exhibit first was executed between the plaintiff and defendant B on the 13th April 2002. Entire consideration was paid by December 2007. Affidavit of the other attested witness PW second P and PW third Q corroborate the oral evidence and statement of the PW first A. During the cross examination, PW first, PW second and PW third stood firmly on their evidence and no contradictory statement was made by them. In rebuttal of the plaintiff's evidence, defendant B produced an affidavit of himself, but during the cross examination, defendant B admitted that the disputed contract exhibit first was lawfully executed between the plaintiff and defendant on so and so date. Further admitted that the entire consideration rupees 10 lakh received from the plaintiff by December 2007. Also admitted that the disputed contract was executed in the presence of the attested witness PW2P and PW3Q. The disputed contract is proved to be a valid contract
entered and executed between the plaintiff and defendant. In light of the above facts, the plaintiff A seems to be entitled to the specific performance of the contract. As the present contract is related to the sale of immovable property, compensation in money is not adequate relief. Reliable oral or documentary evidence was not produced in rebuttal of the plaintiff's evidence by the defendant. Hence, the plaintiff A has succeeded to prove the issue number first. In the opinion of the court, the issue number first is decided in favor of the plaintiff A and against the defendant B. It is admitted in WS itself, receive the amount of the 10 lakh rupees from the plaintiff and also execution of the contract for paltry sum. And the one thing, when the question is asked from the defendant in cross examination whether this disputed agreement is executed by you in the presence of the PW second P and PW third Q, the answer of the defendant in that leading question is yes. That is also the admission on the part of the defendant. All these circumstances in favor of the plaintiff, and therefore the court applies the doctrine of the preponderance of the probability and decided the issue number first in favor of the plaintiff and against the defendant. Next para, burden of the proof proving the issue number 2 was on plaintiff A. Plaintiff made the averment in the plaint that the entire consideration was paid to the defendant B by December 2007. Plaintiff A also repeatedly requests the defendant B to execute the sale deed and to register the same. Plaintiff A personally met the defendant on so and so date for execution of the sale deed, but defendant finally refuses to execute the sale deed. Defendant B in his oral evidence has stated that the plaintiff did not perform his part in disputed contract exhibit first. DW first defendant B during the cross examination admitted that he received the entire consideration 10 lakh from the plaintiff by December 2007. Hence, it is proved that by statement of the plaintiff A, the payment of entire consideration 10 lakh and repeated requests to execute the sale deed by the plaintiff A proves that the plaintiff A was ready and willing to perform his part of the contract. So, in the opinion of the court, the plaintiff A has succeeding to prove the issue number 2 and the said issue is decided in favor of the plaintiff A and against the defendant B. Then burden of proof proving the issue number 3 lies on defendant, issue related to the limitation. Defendant B has only orally argued that the cause of action had arose from the December 2007 when the entire consideration was paid and had prayed to dismiss the suit as it is barred by the limitation. In rebuttal, the plaintiff A firmly averred in the plaint that the cause of action arose on the 15 March 2011 when the defendant B refuses to execute the sale deed in favor of the plaintiff, and the plaintiff A has instituted the said suit on the 1st May 2011. During the argument, the learned advocate of plaintiff A argued that according to the article 54 of the Schedule of Limitation Act, the limitation period for suit for a specific performance of contract is 3 years, computed from the arising of the date of cause of action, and the cause of action deemed to be arise in case of the suit for a specific performance of contract if any date was fixed from that date and where no day is fixed from the date of refusal. From the date of refusal, in the limitation in the present suit, the day for the performance of contract was not fixed. Have the cause of action arose on 15 March 2011 when the defendant refused to execute the sale deed in favor of the plaintiff, and the present suit was instituted on 1st May 2011. After the cause of action arose, the lump sum 1.5 months is within the limitation, and in the opinion of the court, according to the article 54 of the Schedule of the Limitation Act 1963, in present suit there was no day fixed for the performance of contract. Cause of action arose on the date of refusal to perform the contract
In present suit, the defendant B refused to perform the disputed contract on 15 March 2011. On 15 March 2011, it is proved that the plaintiff suit is within limitation. Defendant B failed to prove the issue number 3 in his favor. Hence, the issue number 3 is decided in favor of plaintiff A and against the defendant B. Next one, burden of proof proving the issue number 4 lies on defendant, and that issue is the contract is unregistered and therefore inadmissible in evidence, and the suit of the plaintiff is liable to be dismissed. The defendant made averment in written statement that the disputed contract exhibit first is inadmissible in evidence due to non-registration. During the trial, the defendant in his affidavit of evidence repeated the averment of the written statement. During the arguments, learned counsel for defendant B argued that according to section 49 of the Registration Act 1908, unregistered document or instrument is inadmissible in evidence. In rebuttal of defendant evidence, plaintiff A produced his affidavit of evidence and stated that in case of the specific performance of contract, the unregistered document may be admitted in evidence. During the arguments, the learned counsel for plaintiff A argued that the present suit is instituted for specific performance of contract, and according to the section 49 of the Registration Act 1908, exceptionally in suit for specific performance of contract or collateral purpose. Exceptionally in suit for specific performance of contract or collateral purpose, unregistered document or instrument is admissible in evidence. In the opinion of the court, the present circumstances of the suit are that the section 49 of the Registration Act 1908 is applicable, and that the disputed contract is admissible in evidence. Therefore, the defendant has failed to prove the issue number 4, and the issue number 4 is decided against the defendant B and in favor of the plaintiff A. Means court considered that there are exceptions provided in section 49 of the Registration Act that if the suit for a specific performance of contract or collateral purpose, even unregistered document is admissible in evidence, and the present suit fall under that exception. Therefore, this disputed agreement is admissible in evidence, and the defendant is failed to prove this issue in his favor. Next para number 11, that is concerned to the conclusion of the court. As per the aforesaid appreciation of the facts and evidence, issue number 1 to 4 are decided in favor of the plaintiff. The contract is admissible in evidence. The plaintiff is entitled to a specific performance of contract, and present suit is decreed in favor of the plaintiff. The defendant B shall execute. It is the direction of the court in this last para, that is the operative part of the judgment. The defendant B shall execute the sale deed of the said plot in favor of the plaintiff A within the 2 months from the date of judgment, and as the entire consideration amount is already paid to the defendant B, the amount of the consideration of rupees 10 lakh mentioned in the sale deed, and the parties shall bear their own cost, and the decree shall be prepared accordingly. Accordingly means the as per the direction given by the court in this para number 11 of this judgment, and signature of the presiding officer and seal of the court, and this judgment is pronounced today, date, month and year in open court, and after then the signature of presiding officer and seal of the court. जिस तरीके से हमने इंग्लिश में देखा है, वैसे ही हिंदी में भी देखना है हमें उसी स्टेज से। ये सारी बातें हमने लगभग पहले इंग्लिश में पढ़ ली है, हिंदी में भी केवल भाषा का अंतर है। एज इट इज़ कॉम्पिटेंट कोर्ट का नाम पीठासीन अधिकारी में थोड़ा सा हम जो रूटीन में पढ़ते आ रहे हैं सिविल जज, यहाँ चेंज होगा। इसमें चूंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, हालांकि उसको हमने जो है वो सिंबॉलिक नेम एक्स दिया है,
बट डेजिग्नेशन में चेंज आ जाएगा। यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज कैडर जो है जिला न्यायाधीश संवर्ग है वो मेंशन होगा। मूल सिविल वाद संख्या और ईयर, ये ईयर जो है 2011 में सूट फाइल किया गया था, ये प्रॉब्लम या क्वेश्चन से ही क्लियर था तो आपको 2011 ही मेंशन करना है। देन इसके बाद CNR नंबर एंड ईयर एंड ब्रैकेट बंद करना है। वादी और प्रतिवादी को हमने A और B जो है वो प्रतीकात्मक नाम दिए। देन पुत्रश्री, आयु, निवासी आदि बनाम मेंशन करते हुए आपको है वो मेंशन करना है। देन टाइटल जो सूट का था वो है वो मेंशन होगा, संविदा के विनिर्देश अनुपालना के लिए बात, अधिवक्ताओं की उपस्थिति और उसमें भी अधिवक्ता का भी सिंबॉलिक नाम आपको देना होगा। M विद्वान अधिवक्ता वास्ते वादी और N विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी। उसके बाद निर्णय वो लिखा जाएगा सेंटर में, अंडरलाइन होगा, थोड़ा सा बड़ा लिखना है, मैंने उसी साइज में लिखा है जैसा है वो फॉन्ट इसमें यूज़ लिया गया, इससे थोड़ा सा बड़ा। इधर आपको डेट है वो मेंशन करनी है, ऐसे ब्लैंक नहीं रखनी है जैसा मैंने रखा है। इसमें आपको जो है या तो आप जिस तारीख को जो है वो अपना पेपर दे रहे हैं वो डेट है वो मेंशन करें, या कोई डेट दे रखी हो पेपर के अंदर कि इस तारीख को है वो निर्णय हो गया और उस निर्णय को लिखिए आप, तो वो डेट भी आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने चूंकि 2 एग्ज़ाम RJS के दिए थे, 2011 की भर्ती और 13 की भर्ती, दोनों के अंदर कोई ऐसा एक में तो फैक्ट ही नहीं दे रखे थे। 2011 का जो RPSC का एग्ज़ाम था उसमें तो सारे फैक्ट की कल्पना भी आपको खुद को करनी है और जजमेंट भी है वो खुद को लिखना है। तो जिस तारीख को मैंने पेपर लिखा था वही डेट है वो मेंशन की थी। और दूसरा वाला 13 वाला जो मेंस था उसमें भी कोई ऐसा जजमेंट की डेट पेपर में नहीं दे रखी थी, तो जो पेपर की जो डेट थी वो डेट मैंने जो है वो जजमेंट की डेट में वो मेंशन कर की थी, क्योंकि आप एज प्रिजाइडिंग ऑफिसर किस दिन जजमेंट दे रहे हो, जिस दिन एग्जाम लिख रहे हो उसी दिन है वो दे रहे हो, तो इसलिए आपको एग्जाम की जो आपके सिविल पेपर की डेट है वही डेट है वो मेंशन करनी है। पैरा नंबर 1 वाद पत्र के संक्षिप्त कथन है। इसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक प्लॉट था बीकानेर के अंदर, वादी के पास, पहले वादी उसमें जो है वो किराएदार के रूप में था उस वो प्लॉट में, फिर प्रतिवादी से 2002 में जो है 30 अप्रैल 2002 को एक करार है वो कर दिया उसको खरीदने का, 10 लाख रुपए जो उसका प्रतिकर भी है वो दे दिया। कई बार जो है वो विक्रय है वो पत्र या सेल डीड जो है बेचाननामा जो है बेनामा या बेचाननामा वो अपने पक्ष में निष्पादित करने और उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है वो चाहा, बट बार बार आग्रह करने पर भी उसको टाला गया, अवॉइड किया गया। प्रतिवादी ने दिनांक 1 फरवरी 2011 को एक नोटिस दिया वादी को और उसमें ये कहा कि किराए की अदायगी में जो है वो आपने क्या किया है, व्यतिक्रम किया है, किराए की अदायगी में व्यतिक्रम किया है, आपने डिफॉल्ट किया है, इस तरीके का एक नोटिस है वो दिया। और उस नोटिस के कॉन्सिक्वेंस में जब व्यक्तिगत रूप से प्रतिवादी से वादी मिला 15 मार्च 2011 को, तब प्रतिवादी ने विक्रय विलेख जो है वो निष्पादित करने से इनकार कर दिया। उसके कॉन्सिक्वेंस में उस इनकार करने के बाद वादी जो है वो अपना वाद लेके आया और इस वाद में कोर्ट से ये प्रार्थना की इस तथ्यों के आधार पर कि प्रतिवादी को विक्रय पत्र निष्पादित करने और उसका पंजीकरण करवाने का निर्देश दे और वादी के वाद पत्र को जो है ये भी आपको लिखना होगा, ये वहाँ है वो नहीं है, वो हो सकता है पेपर में मिल भी जाए, आपको न मिले तो भी ये लाइन लास्ट वाली लिखनी है आपको। वादी के वाद पत्र को बाद जांच जो है सिविल वादों के रजिस्टर में जो है वो दर्ज किया गया। आफ्टर इंक्वायरी द सूट ऑफ द प्लेंटिफ हैज बीन रजिस्टर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द सिविल सूट। दूसरा जो पैरा जो प्रतिवादी के लिखित कथन में, ये हवाला आप दे भी सकते हो समन का, और चूंकि लेंदी हो जाएगा जजमेंट तो आप डायरेक्ट जो है समन की तामील के बाद प्रतिवादी ने लिखित कथन है वो पेश किया, ऐसा भी, तो इसमें 2-3 लाइनें हैं वो बच जाएगी आपकी, ऐसा भी कर सकते हैं। तो प्रतिवादी ने बचाव का लिखित कथन पेश किया और उसमें ये कथन किया कि वादी ने स्वयं के जिम्मे संविदा के जो निबंधन थे उसकी पालना नहीं की है और उसकी पालना नहीं की इसलिए वादी के पक्ष में ये संविदा की विनिर्देश अनुपालना का अनुतोष जो है वो दिया जाना धारा 16 से वर्जित है। सेक्शन 16 जो है SRA के अंदर ये पर्सनल बार है, व्यक्तिगत रूप से वर्जित है, इसलिए ये रिलीफ प्राप्त करने के लिए हकदार ही नहीं है। ये पहला ऑब्जेक्शन था प्रतिवादी का। दूसरा, वाद पत्र के अभिकथनों के अनुसार जब उसने संपूर्ण प्रतिबल का भुगतान 2007 में कर दिया तो वहीं से लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया 2007 से, और दिसंबर 2010 तक उसको वाद है वो लेके आना था और ये 2011 में वाद लेके आ रहा है, तो ये बार बाई लिमिटेशन है, परिसीमा अवधि से वर्जित है वो वाद है।
इसलिए वादी का वाद है वो क्या है वो परिसीमा अवधि से है वो बाधित है या वर्जित है। तीसरा जो ऑब्जेक्शन लेके आया कि संविदा जो है वो ये क्या है, अपंजीकृत है, रजिस्टर्ड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट जो 30 अप्रैल 2002 को किया गया था वो, इसलिए ये साक्ष्य में अग्राह्य है और वादी का पूरे जो ये दावा ही इस डॉक्यूमेंट पर है वो बेस्ड है, इसलिए वादी का वाद है वो खारिज किया जाए। यह भी कथन किया कि चूंकि प्रतिवादी की पुत्री का विवाह होने वाला था और उसे धन की जो है वो सख्त आवश्यकता थी, इसलिए अनुबंध या संविदा जो है बहुत ही तुच्छ प्रतिफल पर किया गया, इनएडुकेट कंसीडरेशन है, अपर्याप्त प्रतिफल है और इस अपर्याप्त प्रतिफल ने जो है उसकी कंसेंट को प्रभावित किया है, सहमति को प्रभावित है वो किया है, इसलिए ये वॉइड या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आता है, इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है वो नहीं हो सकता, ये भी ऑब्जेक्शन रेज किया और लास्ट में वादी का दावा अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया। कोर्ट ने थर्ड जो पैरा आएगा इसमें विवादकों की बात होगी, वादी और प्रतिवादी द्वारा पेश की गई जो प्लीडिंग थी, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट, वाद पत्र और लिखित कथन, उसका और उसके साथ पेश किए गए जो सारवान दस्तावेज है उनकी अंतर्वस्तु के आधार पर निम्नांकित विवादक विरचित किए, यदि विवादक विरचित करिए एवं निर्णय लिखे ऐसा प्रश्न था तो इशू आपने पहले फ्रेम कर दिए, तो इस निम्नांकित की जगह आप सम्यक रूप से जो है वो विवादक विरचित किए गए और विचारण प्रारंभ हो गया, ऐसा आप है वो लिख सकते हैं। और यदि विवादकों का अलग क्वेश्चन नहीं था, केवल जजमेंट राइटिंग पे क्वेश्चन है, तो फिर आपको इस पैरे में विवादक बताने भी होंगे, उसमें आपको फॉलोइंग या निम्नांकित लिखना होगा, फिर विवादक सेंटर में लिखा जाएगा, ये 1 by 1 जो है जितने भी 4 विवादक है ये मेंशन करने होंगे और किस पर है वो साबित करने का भार है ये भी है वो आपको है वो मेंशन करना होगा। तो इसमें 4 इशू थे, शुरू के 2 इशू जो है मेन इशू उनका वादी पर भार है और लिमिटेशन का जो इशू है और अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, इन इश्यूज को प्रूव करने का बर्डन है वो किस पर है, प्रतिवादी पर है। विवादकों की पक्षकारों पर व्याख्या की गई और उसके बाद विचारण प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट जो पैरा आएगा वादी के साक्ष्य का आएगा, वादी के आवेदन पर वादी के साक्ष्यों को समन जारी किए गए और इस लाइन को छोड़ भी सकते हो आप, इसको नहीं लिखे सीधा आप ये लिख सकते हैं कि साक्ष्य वादी में जो है वादी ए ने स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया और स्वयं को PW फर्स्ट के रूप में परीक्षित करवाया, मूल संविदा को दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फर्स्ट के रूप में जो है वो प्रदर्शित करवाया और शपथ पत्र में वाद पत्र के तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए कथन किया कि वादी और प्रतिवादी के बीच वैध संविदा, अब इसको भी आप शॉर्ट कर सकते हैं, पुनरावृत्ति करते हुए जो है वो उसने उन जो है वाद पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति की, इतना कर देंगे तो भी है वो चल जाएगा आपका काम। इसके बाद का जो है ये कथन किया, ये क्योंकि ऑलरेडी आपने पैरा नंबर फर्स्ट में जो है वो वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य मेंशन कर रखे हैं, तो ये छोड़ भी सकते हैं आप, ये वाला पोर्शन उसे शॉर्ट आपका जो है जजमेंट शॉर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली उसने कहा कि साहब ये जो है विनिर्देश अनुपालना करवाने का हकदार है और वादी ने अपने अतिरिक्त जो है और किन किन को साक्ष्यों में पेश किया ये हवाला आपको देना होगा। PW2P को है वो परीक्षित करवाया और उसने अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश कर ये कथन किया कि उक्त विवादित संविदा का अनुप्रमाणिक साक्षी है और उसके समक्ष वादी ए और प्रतिवादी बी ने उक्त संविदा जो है वो फर्स्ट पर है वो हस्ताक्षर किए और यह संविदा उसके समक्ष निष्पादित की गई है। वादी साक्ष्य में एक और साक्षी जो है PW3Q को भी परीक्षित करवाया वादी ने और उसने भी अपने साक्ष्य का शपथ पत्र पेश कर कथन किया कि उक्त विवादित संविदा का वो अनुप्रमाणिक साक्षी है और उसकी एवं P की उपस्थिति में वादी ए और बी ने जो है इस विवादित संविदा पर है वो हस्ताक्षर है वो किए और संविदा का निष्पादन किया था। वादी के द्वारा अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं किए जाने पर साक्ष्यवादी है वो बंद किया गया। 3 मौखिक साक्षी परीक्षित किए गए, वादी स्वयं और 2 अटेस्टेड विटनेस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में केवल वो कॉन्ट्रैक्ट था उसको है वो एग्जिबिट है वो मार्क करवाया गया। नेक्स्ट जो पैरा प्रतिवादी के साक्ष्य का, प्रतिवादी ने अपने स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया और स्वयं PW फर्स्ट के रूप में परीक्षित हुआ। कौन से प्रोविजन में साक्ष्य का शपथ पत्र पेश होता है? ऑर्डर 18 रूल 4। लिखना नहीं है ये लिखना नहीं है इसके अंदर, ये आपको पता होना चाहिए कि सिविल के अंदर जो है वो मुख्य परीक्षा का जो साक्ष्य का जो है वो शपथ पत्र साक्ष्य जो होता है मुख्य परीक्षा का जो है वो शपथ पत्र के रूप में होता है, ऑरल है वो एग्जामिनेशन नहीं होती है।
उसके बाद जो है लिखित कथन में किए गए अभिकथनों की उसकी पुनरावृत्ति की, केवल पुनरावृत्ति की, यहां तक छोड़ दे आप, ये बाकी की जो बातें इनको रिपीट करने की है वो आवश्यकता नहीं, अदरवाइज क्या जजमेंट लंबा हो जाएगा। हालांकि मैंने इसमें पूरा रिपीट भी किया कि उसने WS में क्या क्या ऑब्जेक्शन है वो लिए थे। यस, ये थोड़ा एडिशन भी है इसमें, हालांकि दो बातें तो उसकी WS में एडमिटेड थी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया है, प्लेटरी सम पे किया था, तुच्छ प्रतिफल पे, और उसने 2007 में ये प्रतिफल की राशि दे दी थी, तो 2010 तक उसका सूट मेंटेनेबल था, तो ये भी इसकी एडमिशन है। तो दो बातें तो लिखित कथन में ही स्वीकार कर ली गई थी। ऑब्वियसली प्लेंटिफ का एडवोकेट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में दोनों बातों पे वो सवाल पूछेगा कि ये बात सही है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके और वादी के बीच में निष्पादित किया गया था, तो वो हाँ ही बोलेगा, WS से परे जा नहीं सकता वो। और ये बात भी सही है कि आपको दिसंबर 2007 तक ये 10 लाख रुपए प्रतिफल के रूप में दे दिया गया था। ये जब लीडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रॉस में, तो उसमें भी उसको हाँ ही करना होगा। और तीसरी बात जो है वो इस तरीके की पूछ सकते हैं लीडिंग क्वेश्चन के रूप में कि ये बात भी सही है कि ये जो विवादित संविदा है ये आपने और वादी ने PW सेकेंड और PW थर्ड जो P और Q है अटेस्टेड विटनेसेस, उनकी प्रेजेंस में निष्पादित किया था, उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए थे इस संविदा पे। ये प्रश्न भी क्रॉस में है वो पूछा जा सकता है। जब दोनों शुरू के प्रश्न पे हाँ है तो इसमें भी हाँ ही बोलना होगा, ना नहीं हो सकती। तो थोड़ा सा इसमें मैंने एडिशन भी किया है एडमिशन वाले पार्ट पे। दो चीजें तो WS में एडमिट थी, फिर क्रॉस में वापस क्वेश्चन पूछ लिए गए और उसमें भी उसने यस कर दिया या एडमिट कर दिया, और ये भी एडमिट कर दिया कि अटेस्टिंग विटनेस की प्रेजेंस में उसने वो सिग्नेचर किए थे। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वादी और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वाद पत्र और लिखित कथन के अभिकथनों को बहस के दौरान दोहराया। वादी के अधिवक्ता ने दावा स्वीकार डिक्री किए जाने का निवेदन किया और प्रतिवादी के अधिवक्ता ने वादी के वाद को खारिज किए जाने का निवेदन किया। कोई लंबी चौड़ी बहस को आपको डिस्कस नहीं करनी। अल्टीमेटली वादी का अधिवक्ता कह रहा है कि उसका दावा स्वीकार करके और डिक्री पारित की जाए, और प्रतिवादी ये कह रहा है कि इसका दावा खारिज किया जाए। ये एविडेंस आपको इश्यूज जो तय करेंगे उसमें अप्रिशिएट करनी है आपको, उसमें वो बताना है साक्ष्य वादी और प्रतिवादी का उस इश्यू के रेफरेंस में क्या पेश किया गया। अगला जो पैरा है, विचारणीय प्रश्न संख्या 1 जो है या विवादक संख्या जो 1 है, उसको साबित करने का भार वादी पर था, और वादी ने विवादक संख्या 1 को साबित करने के लिए स्वयं को PW फर्स्ट और P को PW सेकंड और Q को PW थर्ड के रूप में जो है वो परीक्षित करवाया। मींस 3 मौखिक साक्ष्य है वो परीक्षित करवाए, और वादी A ने स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र भी पेश किया और मूल संविदा प्रदर्श फर्स्ट के रूप में जो है वो प्रदर्शित करवाई। वादी ने दृढ़ता पूर्वक शपथ पत्र में कथन किया कि विवादित संविदा प्रदर्श फर्स्ट जो है वादी और प्रतिवादी के बीच में इस तारीख को निष्पादित की गई। संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान इतनी तारीख को कर दिया गया, और वादी के कथनों की जो संपुष्टि है PW सेकंड P और PW थर्ड जो Q जो अटेस्टिंग विटनेस या अनुप्रमाणक साक्षी थे उस संविदा के, उनके द्वारा साक्ष्य के शपथ पत्रों से वो हो रही है। मूल संविदा प्रदर्श फर्स्ट से भी मौखिक जो साक्ष्य है उसकी संपुष्टि या कोरोबरेशन हो रही है। प्रतिपरीक्षा के दौरान PW फर्स्ट, PW सेकंड एंड PW थर्ड सभी साक्षी जो है वो अडिग रहे, अपने कथनों पर है वो स्टैंड रहे वो, और कोई विरोधाभासी कथन उन्होंने नहीं किया। प्रतिवादी के द्वारा इसके खंडन में स्वयं का साक्ष्य का शपथ पत्र पेश कर DW के रूप में परीक्षित करवाया, और प्रतिवादी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार किया कि वैध संविदा प्रदर्श फर्स्ट वादी और प्रतिवादी के बीच में निष्पादित की गई है। यह भी स्वीकार किया कि उसने वादी से प्रतिफल की राशि 10 लाख रुपए दिसंबर 2007 को प्राप्त कर ली थी, और इस प्रकार न्यायालय की राय में वैध संविदा प्रदर्श फर्स्ट वादी और प्रतिवादी के बीच निष्पादित होना साबित है। अटेस्टिंग विटनेस भी कह रहे हैं, वादी स्वयं भी कह रहा है, प्रतिवादी WS में एडमिट कर रहा है, क्रॉस में एडमिट कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में और कंसीडरेशन भी मिल चुका है उसको। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों के बीच में किसी प्रकार की कंसेंट जो है वो प्रभावित आदि नहीं थी, ये कोर्ट जो है वो साबित मानता है। स्थावर संपत्ति की विक्रय की संविदा होने से धन के रूप में प्रतिकर समुचित अनुशोच नहीं है। प्रतिवादी के द्वारा खंडन में कोई विश्वसनीय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। वादी विवादित संविदा प्रदर्श फर्स्ट की विनिर्दिष्ट अनुपालना करवाने का
है वो हकदार है और वादी विवादित संख्या 1 को साबित करने में कोर्ट की राय में सफल भी रहा है। अतः विवादित संख्या 1 वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध है वो तय किया जाता है या अवधारित किया जाता है। सर इसमें लिखने की जरूरत है क्या? जैसे एविडेंस के 58 में जाएंगे उन्होंने अपने लिखित कथन में स्वीकार कर लिया तो साबित करने में भाग नहीं रहा। क्यों? उसके बावजूद भी कोर्ट के पास पावर है। प्रोविजो पढ़ा होगा सेक्शन पे। बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ये लिख सकते हैं कि उन्होंने लिखित कथन में ये तथ्य स्वीकार कर लिए। एविडेंस में भी और क्लॉज में भी स्वीकार कर लिया, लिख दिया, तो इसमें कोई नुकसान वाली बात भी नहीं। WS में भी स्वीकार था, क्रॉस में जब क्वेश्चन पूछा गया उससे तब भी उसने एडमिट कर दिया। विवादित संख्या 2 को साबित करने का भार भी वादी पर था। वादी ने, और विवादित संख्या 2 क्या है? वादी अपने भाग का जो संविदा का जो भाग था उसका पालन करने के लिए तैयार और रजामंद है वो था, या तैयार और रजामंद है वो रहा। उस विवादक को साबित करने का भार वादी पर है। वाद पत्र में उसने ये अभिकथन किया कि उसने संपूर्ण प्रतिफल का भुगतान दिसंबर 2007 को कर दिया था। ये उसका रेडीनेस एंड विलिंगनेस है वो शो होता है, एंटायर कंसिडरेशन का वो पेमेंट है वो करना। वादी ने विक्रय विलेख करवाने के लिए बार बार निवेदन किया प्रतिवादी से, ये भी उसकी रेडीनेस एंड विलिंगनेस है वो दर्शित करती है। और वादी प्रतिवादी से विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए दिनांक 15 मार्च 2011 को व्यक्तिगत रूप से भी मिला, ये भी उसकी अब वो रेडीनेस एंड विलिंगनेस है वो दर्शित करता है। प्रतिवादी ने विक्रय विलेख निष्पादित करने से इनकार कर दिया। प्रतिवादी ने इसके खंडन में केवल मौखिक कथन किया कि वादी के स्वयं के जमे संविदा के निर्बंधों का पालन है वो नहीं किया है, और कोई विश्वसनीय साक्ष्य उसने पेश नहीं किया कोर्ट में। प्रतिवादी ने प्रतिपरीक्षा के दौरान यह स्वीकार कर दिया कि वादी से प्रतिफल की राशि 10 लाख रुपए उसने दिसंबर 2007 कब दिसंबर 2007 को है वो प्राप्त कर ली थी। वादी द्वारा किए गए कथनों संपूर्ण प्रतिफल की राशि का भुगतान किए जाने, विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए निवेदन आदि करना, प्रतिवादी की स्वीकृति के कथन से यह साबित है कि वादी संविदा में उसके भाग के पालन के लिए तैयार और रजामंद था। इस प्रकार वादी इस विवादक को साबित करने में सफल रहा और विवाद संख्या 2 जो है वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध है वो तय किया जाता है। थर्ड विवादक जो लिमिटेशन के पॉइंट पे था, परिसीमा से वर्जित है बात, इसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने केवल मौखिक कथन किया कि प्रतिफल की राशि दिसंबर 2007 में दे दिए जाने से वाद कारण वहीं से उत्पन्न हुआ है और वादी का वाद परिसीमा विधि से वर्जित है। इसके खंडन में वादी ने वाद पत्र में यह दृढ़तापूर्वक कथन किया कि वादी को वाद पत्र पेश करने का वाद हेतु दिनांक 15 मार्च 2011 को तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने विक्रय विलेख वादी के पक्ष में निष्पादित करने से इनकार कर दिया। वादी जो है, वादी ने दिनांक 1 मई 2011 को हस्तगत वाद न्यायालय के समक्ष पेश किया। वादी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह तर्क दिया कि परिसीमा अधिनियम 1963 के साथ संलग्न अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 54 के अनुसार संविदा की विनिर्देश अनुपालना के लिए वाद कारण उत्पन्न होने से 3 वर्ष के भीतर वाद पेश करने हेतु परिसीमा काल है और वाद कारण संविदा की विनिर्देश अनुपालना के वाद में उस समय उत्पन्न हुआ माना जाएगा यदि संविदा के पालन के लिए दिन नियत है तब उस नियत दिन से, और संविदा के पालन के लिए दिन नियत नहीं है तो ऐसी कंडीशन में संविदा के पालन से इनकार करने के दिन से जो है वो वाद हेतु को उद्भूत है वो हुआ माना जाएगा। हस्तगत वाद में संविदा के पालन के लिए दिन निर्धारित नहीं था। सेल डीड कौन सी डेट को एग्जीक्यूट की जाएगी ये डेट है वो उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है वो नहीं थी, इसलिए पालन से इनकार करने की तारीख, पालन से इनकार करने की जो तारीख है वहां से वाद कारण है वो उत्पन्न हुआ है। और विवादित मूल संविदा प्रदर्श स्पष्ट का पालन से प्रतिवादी ने कौन सी तारीख को इनकार किया? 15 मार्च 2011 को है वो जब वो व्यक्तिगत रूप से मिला तब इनकार किया था, मना किया था, और वहां से 3 वर्ष जो है हस्तगत वाद के लिए परिसीमा काल था। और हस्तगत वाद 1 मई 2011 को मीन्स 15 मार्च 2011 को वाद हेतु को उद्भूत हुआ, सूट लाने का अधिकार उद्भूत हुआ और 1.5 महीने बाद ही जो है 1 मई 2011 को उसने वाद है वो संशोधित कर दिया। तो अभी तो उसके पास बहुत सारा लिमिटेशन पीरियड पड़ा था। इस 3 साल में से 1.5 महीने लैप्स कर ले आप
2 कर दे मैक्सिमम तो भी उसके पास 34 महीने पड़े थे, 34.5 महीने जो है वो पड़े थे सूट फाइल करने के लिए। न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया वाद, परिसीमा काल के भीतर होने का निवेदन किया। न्यायालय की राय में परिसीमा अधिनियम के अनुसूची के अनुच्छेद संख्या 54 के अनुसार हस्तगत प्रकरण में संविदा के पालन के लिए दिन नियत नहीं था, इसलिए संविदा के पालन से इनकार करने की तारीख से वाद कारण उत्पन्न हुआ है और संविदा के पालन से इनकार 15 मार्च 2011 को किया जाना साबित है, इसलिए वादी का वाद परिसीमा अवधि के भीतर पेश है और प्रतिवादी विवादक संख्या 3 को साबित करने में असफल रहा है। अतः विवादक संख्या 3 जो है वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध है वो तय किया जाता है। नेक्स्ट, विवादक कि ये संविदा जिसके बेसिस पे सूट फाइल किया गया ये अनरजिस्टर्ड है, अपंजीकृत है, तो ऐसी कंडीशन में ये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। धारा 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार ये इनएडमिसिबल इन एविडेंस है और जब ये संविदा ही साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है तो ये सूट भी मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए ये वाद है वो खारिज किया जाए। वाद का बेसिस ही एविडेंस के रूप में एडमिट है वो नहीं हो सकता, तो इस सूट को डिक्री नहीं किया जा सकता है, वो ये वाद है वो खारिज किया जाए। तो इस इश्यू को प्रूव करने का बर्डन किस पर था? प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने लिखित कथन में ये कथन किया कि विवादित संविदा अपंजीकृत होने से साक्ष्य में अग्राह्य। विचारण के दौरान साक्ष्य के शपथ पत्र में भी इस कथन की पुनरावृत्ति की। बहस के दौरान तर्क दिया कि रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में अग्राह्य होता है। वादी ने इसके खंडन में विचारण के दौरान पेश किए गए साक्ष्य के शपथ पत्र में यह कथन किया कि अपंजीकृत संविदा साक्ष्य में ग्राह्य है और बहस के दौरान भी वादी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि हस्तगत वाद संविदा की विनिर्देश अनुपालना के लिए संस्थित किया गया है और रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49 के अपवाद के अंतर्गत संविदा की विनिर्देश अनुपालना के वाद या समपार्श्विक प्रयोजन, इन दोनों में से किसी भी है वो पर्पज के लिए अपंजीकृत दस्तावेज भी साक्ष्य में ग्राह्य होते हैं। ये वादी के अधिवक्ता ने आर्ग्यूमेंट के टाइम कोर्ट के सामने बात रखी। न्यायालय की राय में संबंधित विधि रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 49 के अवलोकन से स्पष्ट है कि संविदा की विनिर्देश अनुपालना के बाद में अपंजीकृत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य है। इस प्रकार प्रतिवादी इस विवादक को साबित करने में असफल रहा, अतः विवादक संख्या 4 भी जो है प्रतिवादी के विरुद्ध और वादी के पक्ष में तय किया जाता है। रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 49 में 2 अपवाद बता रखे हैं जहां अनरजिस्टर्ड या अपंजीकृत दस्तावेज भी साक्ष्य में ग्राह्य होता है। एक तो संविदा की विनिर्देश अनुपालना के बाद में और दूसरा समपार्श्विक प्रयोजन के लिए, मींस इंजेक्शन सूट वगैरह में। शाश्वत व्यादेश या अज्ञापक व्यादेश के बाद है जिसमें ओनरशिप तय नहीं करनी है, केवल पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए सूट है, वहां पर भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो एडमिसिबल हो सकते हैं। ये भी एक्सेप्शन में फॉल होता है। संविदा की विनिर्देश अनुपालना का वाद है, इसलिए इसमें अपंजीकृत दस्तावेज भी साक्ष्य में ग्राह्य है। तो ये जो इशू है ये भी अल्टीमेटली वादी के पक्ष में और प्रतिवादी के विरुद्ध तय हुआ। जब चारों विवादक जो है वादी के पक्ष में तय हो गए हैं, अल्टीमेटली सूट डिक्री होना है। इसमें उपयुक्त विवेचना अनुसार विवादक संख्या 1 से 4 वादी के पक्ष में निर्णित होने से वादी संविदा की विनिर्देश अनुपालना करवाने के लिए हकदार है। वादी का दावा स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी निर्णय की तारीख से 2 महीने के भीतर वादी के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित करे। चूंकि प्रतिफल की संपूर्ण राशि का भुगतान किया जा चुका है, विक्रय विलेख में 10 लाख रुपए प्रतिफल की राशि के रूप में वर्णित किया जाए। पक्षकार अपने अपने खर्चे है वो वहन करे और तद अनुसार जो है डिक्री पर्चा तैयार किया जाए। तद अनुसार का मतलब इस पैरा नंबर 11 में जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है निर्णय में, इस निर्देशानुसार जो है डिक्री है वो प्रिपेयर की जाए। इसके बाद पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा आएगी और यह निर्णय जो है आज दिनांक 100 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। यह स्टेटमेंट आएगा और इसके बाद पीठासीन अधिकारी के पुनः हस्ताक्षर होंगे और न्यायालय की मुद्रा लगेगी।